Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion, and topic for this lecture is chemical kinetics. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. Alright. So in the chapter of chemical kinetics, we study about the rate of the reaction, the rate at which the reaction proceeds, and then different orders of reactions are there: first order, second order, third order, even zero order reaction. What is the significance of rate constant K and the units of K for different orders? For first order, K has some other units. For second order, the units of K are different. And apart from that, the chemical equations and graphs related to various orders, how to calculate the rate constant for first order, how to calculate rate constant for zero order, those equations are derived also, and graphs are related questions are asked. Next part of the chapter is the Arrhenius equation, in which calculation of K is done, and pre-exponential factor, that is also called as frequency factor, that is to be calculated. And apart from that, the activation energy part, activation energy for forward and for backward reaction is same or not same, that has to be taken up. So all these concepts are to be revised through these questions. Let's start with the first question. So question number 1 on the screen. First question is, the rate constant for a first order reaction is given. For first order reaction आपको rate constant given है. It is 4.6 into 10 raised to power minus 3 per second. Time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram is. So such type of questions are very important. You can see it is a previous year, just last year का ही question है, NEET 2020 का question है. Simple first order के ऊपर आपको calculate क्या करना है, rate constant के. So first order expression क्या है वो हमें याद होना चाहिए. For first order reaction, the rate constant K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon A. A naught is the initial concentration and A is the concentration at time T. ये ठीक से पता होना चाहिए, symbols का clarity होना चाहिए. It is the concentration which is initial, जब आपने reaction start किया, जब experiment start किया, ये वो concentration है. And A is the concentration at time T. So we have to substitute the values. अब हम put कर देंगे. Time हमें question में क्या given है? Time is given. Time is to be calculated और rate constant K आपको given है. So we write this upon time. लॉग के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप 2 ग्राम और एट टाइम टी के लिए आप ले लोगे 0.2 ग्राम. स्टार्ट किससे किया था एक्सपेरिमेंट? 2 ग्राम से, और बाद में रह गया 0.2. और टी कैलकुलेट करना है, टी को लेफ्ट पे ले जाते हैं और के का वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. इट इज 4.606 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. इसके यूनिट्स हैं पर सेकेंड, ये के यूनिट्स हैं log 2 upon 0.2. सिंपल क्वेश्चन. अब log वाली टर्म तो बन गया log 10, 2.303 upon 4.606. ये 10 रेज टू पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाते हैं, 10 रेज टू पावर प्लस 3 हो गया और पर सेकेंड जो है वो सेकेंड बन गया. log 10 is 1. As a result the time will come out to be, after cancellation ये 2 आ जाएगा. It is 1000 upon 2. 1000 upon 2 means 500 seconds. For this reaction to change from 2 gram to 0.2, 500 seconds का time लगेगा. As a result आपके question का आंसर है D option. D is the correct answer for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन में मेंशन किया गया था फर्स्ट ऑर्डर, अदरवाइज हम यूनिट्स के थ्रू भी देख सकते हैं. पर सेकंड दिया ना, तो वहां से भी आप देख सकते हो. Let's come to the next now. Question number 2. An increase in concentration of reactants of a reaction leads to change in.
जब हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट की तो क्या चेंज होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या एक्टिवेशन एनर्जी या हीट ऑफ रिएक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए जब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिंबल Z होता है एंड इफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली रेट विल इंक्रीज। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने पढ़ा रखा है। लॉ ऑफ मास एक्शन विच वॉज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वॉग। उन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं। कॉमन सेंस की बात है, रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन मींस मोर कोलिजन्स, मोर कोलिजन्स का मतलब मोर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सो मोर कोलिजन्स बिकॉज ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट। तो जब जब हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो ये भी पिछले ही साल का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, नीट 2020 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, सिंपल, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, कॉमन सेंस की बात है। रेट कब बढ़ेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि कॉन्सेंट्रेशन से रेट क्यों बढ़ता है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती है। आंसर है नो, कोलिजन्स बढ़ती हैं। कोलिजन बढ़ने का मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। गॉट इट। कमिंग टू क्वेश्चन 3, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A plus B plus C is given by, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट। माइनस DA अपॉन DT रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। इट इज इक्वल टू K A रेस टू पावर हाफ, B रेस टू पावर 1/3, C रेस टू पावर 1/4। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। ऑर्डर होता है, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, it is the sum of exponents to which the concentration terms are raised. Concentration terms are raised in the rate law. ये रेट लॉ को रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो रेट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ये रेट एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें आप एक्सपोनेंट्स चेक कर लो। ये था माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, फिर A रेस टू पावर हाफ, B रेस टू पावर 1/3 एंड C रेस टू पावर 1/4। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A चाहिए तो हाफ होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B चाहिए तो 1/3 एंड विद रिस्पेक्ट टू C इट विल बी 1/4। आपको तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो आप इसमें 12 LCM ले लो। LCM आ गया 12, यू विल गेट हेयर 6 प्लस 4 प्लस 3 एज अ रिजल्ट 13 अपॉन 12 इज द आंसर फॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। सो ऑर्डर का आंसर आ गया 13/12 मीन्स B पार्ट। सिंपल क्वेश्चन, आपको पूरे रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। इंडिविजुअल ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, कभी कभी A का पूछेंगे तो हाफ, B का पूछेंगे तो 1/3, C का पूछेंगे तो 1/4। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी EA is 0 and the rate constant at 200 Kelvin is given and rate constant at 400 Kelvin you have to find out. K1 लो टेम्परेचर पे सिंबल होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का वैल्यू आपको गिवन है, बट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। K2 आपको कैलकुलेट करना है, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो किस तरीके से हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 नीट का क्वेश्चन है। मेडिकल एंट्रेंस में केमिकल काइनेटिक्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप एक्सप्रेशन लगाइए log K2/K1
एक टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट पता है, दूसरे पे आपने कैलकुलेट करना है, देन इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, राइट साइड तो हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमें जीरो दी है। द टोटल राइट साइड विल बिकम इक्वल टू जीरो, एज अ रिजल्ट log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू जीरो। तो याद है log 1 जीरो होता है, हेंस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट K2 इज इक्वल टू K1। कहने का मतलब जो लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट था वही वैल्यू हाई टेम्परेचर पे आएगी। K1 was the value at 200, K2 was the value at 400। तो जो लो टेम्परेचर पे वैल्यू थी वो कितनी थी? That was 1.6 into 10 raised to power 6। It means K1 जो है वही K2 आएगा। Your answer will be B option। The value is 1.6 into 10 raised to power 6। Units are per second। पर सेकेंड से पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम ऑर्डर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017। मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज गिवन टू अस। ये मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स के अंदर। स्लो स्टेप के ऊपर हम ध्यान देते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। कीप इन माइंड जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो कौन डिटरमिन करता है? वो स्लोएस्ट स्टेप डिटरमिन करता है। अब स्लोएस्ट स्टेप को देख के हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेंगे। स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट कौन कौन है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इंटू Y2। मैंने सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से देखा है। कैसे पता चला कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रहा है। दीज आर दी 3 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 स्टेप में प्रोसीड हो रहा है और जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके थ्रू आपने सारा डिसीजन लिया, रेट उसके थ्रू कैलकुलेट कर लिया। अब आपके रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन कौन है? X2 एंड Y2। ये आपके मेन रिएक्शन के 2 रिएक्टेंट हैं, पर ये जो X है ये तो कोई रिएक्टेंट नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, ये कोई इंटरमीडिएट है। कीप इन माइंड रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। ये हम चेंज करेंगे। इंटरमीडिएट की टर्म्स में रेट एक्सप्रेस नहीं किया जाता। रिएक्शन का रेट आपको या तो किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट की टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन पे आइए। फर्स्ट रिएक्शन फास्ट रिएक्शन था। बाय द फर्स्ट रिएक्शन आई कैन राइट x2 इज गिविंग x प्लस x। ये फर्स्ट रिएक्शन में दिया है। ठीक है, जो फास्ट रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। आपका प्रोडक्ट कौन है? x एटम, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम इंटू x2। तो मैंने यहां से x का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया। इट इज अंडर रूट ऑफ k इक्विलिब्रियम इंटू x2। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन था। दिस वॉज इक्वेशन 1। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? ये रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इंटू Y2। वहां पे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इंटू Y2। दिस वॉज द एक्सप्रेशन। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे बाय द रेट कांस्टेंट k। अब मैंने x का वैल्यू यहां डाल देना है। x का वैल्यू जब यहां डालेंगे तो ये बनेगा रेट इज इक्वल टू k इंटू k इक्विलिब्रियम रेस टू पावर हाफ एंड देन x2 रेस टू पावर हाफ एंड नेक्स्ट इज y2। तो
तो ये दोनों कांस्टेंट्स को मिला के एक नया कांस्टेंट बना एंड x2 रेज टू पावर हाफ एंड y2। अब आप ऑप्शंस पे आइए। ऑप्शंस में क्या है, ऑर्डर निकालना है। हमारा रेट लॉ क्या आ चुका है, रेट लॉ में आपके पास रिजल्ट आ गया, रेट डिपेंड्स अपॉन x2 रेज टू पावर हाफ एंड y2 रेज टू पावर 1, हेंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ओवरऑल ऑर्डर क्या बना, हाफ प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1.5 और यू कैन से 3/2। गॉट इट। सो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो सी ऑप्शन में गिवन है 1.5। बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन कि सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से ये देख के आपने पहले रेट लिखना है, बट स्लोएस्ट स्टेप में जो सिंपल एक एटम एक्स का आ रहा है ना तो वो रिएक्टेंट है और ना ही वो प्रोडक्ट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ सम अदर रिएक्शन, सो दैट आप रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करिए। तो उससे हमारा ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए ऑर्डर बनता है 1.5। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1.5। Let's come to the next now. Question number 6. Another question from NEET 2017. A first order reaction has a specific reaction rate. Specific reaction rate किसको कहते हैं? Specific reaction rate, rate constant का ही नाम होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। So हमें क्वेश्चन में rate constant दिया है 10 raised to power -2 per second. How much time will it take for 20 gram of the substance of the reactant to reduce to 5 gram? कितने टाइम में ये 20 ग्राम से 5 ग्राम बच जाएगा? तो देखते हैं, फिर से फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर मेंशन किया है और यूनिट्स के थ्रू भी हमें दिख रहा है, के यूनिट्स हैं पर सेकेंड, वहां से भी दिख रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो कैन आई राइट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ A नॉट अपॉन A एंड इनिशियल वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, बाद में रह गई 5 ग्राम। स्टार्ट किया था 20 ग्राम रिएक्टेंट से और बाद में हम चाहते हैं कि 5 ग्राम बच जाए। सो कैन इट बी रिटन एज t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k। जो भी कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट पे जाएगा ताकि t आ जाए। मतलब हमको यूनिटरी मेथड तो लगा नहीं रहे ना, हम सिंपल इक्वेशन लगा रहे हैं, तो जो कैलकुलेट करना है हम उसको लेफ्ट पे ले आते हैं। रेट कांस्टेंट k का वैल्यू आपको दे रखा था क्वेश्चन में 10 रेज टू पावर -2, 20 ग्राम सैंपल था, 5 ग्राम तक लेके आना था। सो इट इज 2.303 अपॉन 10 रेज टू पावर -2 इंटू लॉग ऑफ 4। लॉग 4 को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, तो आप 2 को बाहर ले आओगे। इट इज 2.303 अपॉन 10 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू लॉग 2। लॉग 2 मतलब 0.3010। दीज आर दी वैल्यूज, मल्टीप्लाई विद 0.3010 और ये 10 रेज टू पावर -2 जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आएगा तो 10 रेज टू पावर 2 बन जाएगा एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये बनेगा 138.6 सेकेंड्स। 138.6 seconds. Got it? So answer is option A. So rate constant दिया था आपको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी रिएक्टेंट का गिवन था और रिड्यूस करके 5 ग्राम तक लेके आना था। ये सिंबल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, न्यूमरेटर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहती है। जब जब फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, k इज इक्वल टू 2.303 upon t log of A naught upon A. Let's move on to the next now, question number 7. Seventh question is, bromination of acetone that occurs in acid solution is represented by this equation. The kinetic data were obtained for the given concentrations. आपको concentrations दिए हैं एसीटोन का, ब्रोमीन का, H+ का and rate is also given. Disappearance of Br2 हमें दिया है एंड 4 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको क्या करना है कि रेट लॉ निकालना है, रेट इक्वेशन निकालनी है। रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन एक ही बात होती है। ऑल इंडिया पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे
जहां पे एक कंपोनेंट कांस्टेंट है और दूसरा वेरी कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए, फर्स्ट और सेकंड, कैन आई राइट बाय टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम R1 अपॉन R2। R1 के अंदर वैल्यू है 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 और ये भी वही वैल्यू है 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। इट इज इक्वल टू एसीटोन की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.30 और सेकंड में भी 0.30। इसके ऊपर मैंने P कर दिया है। उसके बाद हम लिखते हैं ब्रोमीन का वैल्यू। ब्रोमीन है फर्स्ट के अंदर 0.05, सेकेंड में 0.10 रेज टू पावर Q, फिर H प्लस, दोनों में 0.05। तो एक के साथ मैंने ऑर्डर का नाम रख दिया P, एक के साथ Q, एक के साथ R। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो 1 ही आ रहा है, ये तो कट रहा है और ये पैरामीटर्स कट रहे हैं। जो जो कट रहा है वो लिख दिया। 1 इज इक्वल टू, कैन आई से दिस इज 1/2 रेज टू पावर Q। इट मीन्स Q का वैल्यू 0 है बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q, Q किसका था? ब्रोमीन का। P हमने लिया था फर्स्ट कंपोनेंट का जो कि एसीटोन था, Q हमने लिया ब्रोमीन के लिए, R हमने लिया H प्लस के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, तो ये 0 आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हैं किसी तरीके से। अब H प्लस और एसीटोन का वैल्यू हमारे पास आना चाहिए। तो आप देखिए, अब एक्सपेरिमेंट्स हम ले लेंगे। फर्स्ट और सेकंड तो आप ले चुके हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड और थर्ड के थ्रू अगर हमें इंफॉर्मेशन लिखना है, इट विल बी, आई एम राइटिंग नाउ R3 अपॉन R2। रेट इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट हमें क्या गिवन है? 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 और सेकंड में है 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। तो 5.7 को मैंने 0.57 कर दिया ताकि दोनों में रेज टू पावर में 10 रेज टू पावर माइनस 4 बन जाए। एंड इट इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3। ये तो हो गया फर्स्ट कंपोनेंट जो कि P था, एसीटोन था। सेकंड था ब्रोमीन, वो दोनों एक्सपेरिमेंट्स में 0.1, उसके बाद 0.1, 0.05 रेज टू पावर R। ये मैंने R3 और R2 का डेटा लिख दिया है। R3 थर्ड एक्सपेरिमेंट का, ये चेक कर सकते हैं, थर्ड एंड देन सेकंड हमने लिया। थर्ड और सेकंड में एसीटोन एंड ब्रोमीन एकदम सेम थे। सो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे तो ये कट करने के बाद आ रहा है 2, न्यूमरेटर में आपके पास 2 आ रहा है ना। सो इट इज 2 इक्वल टू, दिस इज 2 रेज टू पावर R। बाकी सब तो कैंसिल हो रहा है, ये तो कट रहा है, ये कट रहा है, तो R का वैल्यू आ गया 1। R क्या चीज था? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आ गया है 1, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन तो ऑलरेडी आ चुका है 0। ये चेक कर लो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन आ गया था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस अब हमने कैलकुलेट कर लिया। तीसरा कंपोनेंट रहता है एसीटोन। अब फिर से देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा को। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें एसीटोन का इंफॉर्मेशन मिल सके। लेट्स टेक फोर्थ एंड फर्स्ट, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट में लेने से एसीटोन का अमाउंट बदल रहा है। फर्स्ट में एसीटोन है 0.30, फोर्थ में एसीटोन है 0.40। सो आई एम राइटिंग R4 अपॉन R1। लेट्स कंसिडर R4 और R1 का रेशो लेते हैं। R4 का वैल्यू है हमारे पास 3.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 और ये था 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। तो दोनों का हम 10 रेज टू पावर माइनस में सेम करना है, इसलिए मैंने 0.57 कर दिया। 10 रेज टू पावर माइनस 4 बन गया दोनों तरफ। इट इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.3। ये हमारे पास एसीटोन के वैल्यूज थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। ब्रोमीन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रोमीन के विद रिस्पेक्ट टू तो ऑर्डर 0 है। H प्लस लेना पड़ेगा। इट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05, गॉट इट, रेज टू पावर 1। तो ये इक्वेशन में लेफ्ट साइड आफ्टर डिवाइडिंग
तो ये बन रही है 1.33, लेफ्ट साइड पे आ रहा है 1.33. दिस इज इक्वल टू 4/3 and you have 4/1 on the right hand side. Coming to the next value, 4 को जब हम लेफ्ट पे लाएंगे तो ये बनेगा 1.33. राइट पे अभी 4 है ना, तो ये 4 को पहले लेफ्ट पे ले आओ, तो ये हम लिखते हैं 3.1/0.57. अगली लाइन में आप इसको सॉल्व करो, 4 को लेफ्ट पे लाओ, 1.33 बनेगा इक्वल टू 4/3 रेज टू पावर p. हेंस अगर p का वैल्यू 1 है तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हो गई 1.33 और 4/3 भी 1.33 होता है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एसीटोन बन गया है इक्वल टू 1. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे आ चुके थे पहले, एक तो ब्रोमीन का आ गया था 0 और H प्लस का आ गया था 1. अब आ गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एसीटोन, तो ये भी आ गया 1. गॉट इट. लेट्स कम टू द ऑप्शंस नाउ. हमारे क्वेश्चन में रेट लॉ पूछा जा रहा था, तो ब्रोमीन का तो 0 आया है, एसीटोन का 1 आ रहा है और H प्लस का 1 आ रहा है. आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें 4 या 5 एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया होता है, आपको ऑर्डर निकालना है, रेट लॉ निकालना है. तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा 2 आया, बट इंडिपेंडेंटली कोई पूछे तो एसीटोन के साथ ऑर्डर है 1 एंड H प्लस के साथ ऑर्डर है 1, ब्रोमीन के साथ ऑर्डर है 0. गॉट इट. Coming to the next now, question number 8. The rate constant K1 and K2 for two different reactions are given. 10 raised to power 16 ये value दी है for K1 and then you are given the value for K2. Temperature at which K1 is equal to K2, very important, 2008 All India PMT का question है. तो किस टेम्परेचर पे K1 और K2 इक्वल होंगे ये देखना है. Can I say K is equal to A e raised to power minus EA upon RT, ये आर्हीनियस इक्वेशन है. तो आप बना दोगे ये A e raised to power वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 10 raised to power 16 दिया है ना, 10 raised to power 16, उसके बाद e raised to power minus 2000 upon T. राइट साइड पे 10 raised to power 15 minus 1000 upon T. Got it? So we have left side पे 10 raised to power 16 divided by 10 raised to power 15. राइट पे आ गया e raised to power minus 1000 upon t plus 2000 upon t. तो ये लेफ्ट साइड तो है 10, राइट साइड इज e raised to power 1000 upon t. Let's take natural log on both sides. Natural log of 10 is equal to 1000 upon t. ये होता है 2.303 and 1000 upon t. Got it? So t का वैल्यू 1000 divided by 2.303. किस तरीके से सॉल्व किया था नेचुरल लॉग 10 को? It is written as 2.303 into log of 10. log 10 1 होता है तो 2.303 आपके पास वैल्यू आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 10 का. नेचुरल लॉग 10 is 2.303. Coming to the options, आपके क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 1000 upon 2.303 A पार्ट. A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो आर्हीनियस इक्वेशन पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आया विच वॉज इंपॉर्टेंट बट इट इज अ प्रीवियस ईयर PMT क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द रिएक्शन you are given N2O5 changing to 2 mole of NO2 plus half O2. The value of rate of disappearance of N2O5 is given. This is the value and rate of formation of NO2 and O2. दो चीजों का आंसर करना है, किस रेट पे NO2 बन रहा है और किस रेट पे O2 बन रहा है. तो हम क्या करेंगे, अपने रिएक्शन के लिए पहले रेट लिखेंगे. N2O5 is changing to NO2 plus half O2. तो रेट कैसे लिखेंगे, -d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, रिएक्टेंट के आगे जब रेट लिखा जाता है तो माइनस का साइन लगता है, प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, तो 1/2 d/dt ऑफ NO2 एंड इट इज 1/1/2 d/dt ऑफ O2. तो पहले हम फर्स्ट दोनों को कंपेयर कर लेते हैं.
क्योंकि एक आंसर NO2 का देना है और फिर दूसरा आंसर आपको O2 का देना है। पहले फर्स्ट 2 की हेल्प से अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू थी 6.25 इंटू 10⁻³ आप क्वेश्चन से चेक करिए, दिस वैल्यू वॉज गिवन टू यू 6.25 इंटू 10⁻²। इट इज इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ NO2। माइनस साइन मैंने छोड़ दिया क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। सो d/dt ऑफ NO2 will be equal to 6.25 into 10⁻³ multiplied by 2 which is equal to, after multiplying आपको 12.5 मिलेगा। 12.5 into this, ये है rate of disappearance of NO2। एक आंसर आ गया फर्स्ट वन। सेकंड आपको O2 के साथ भी कैलकुलेट करना है। अगर O2 के साथ करना है तो हम अपना एक्सप्रेशन अब N2O5 और O2 का लिखेंगे। अब मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा -d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 2 ऑफ d/dt ऑफ O2। ये आप एक्सप्रेशन लिखोगे और यहाँ पे वैल्यू है 6.25, ये हमें बिगनिंग में ही दे दी गई थी, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 d/dt ऑफ O2। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आपके पास निकल आएगा। इट विल बी हाफ ऑफ द वैल्यू आपकी है 6.25 इंटू 10⁻³ इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया 3.125 इंटू 10⁻³ यूनिट्स। तो यही रहते हैं, रेट के यूनिट्स कभी चेंज नहीं होते, रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड ही रहेंगे। तो अब ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। ऑप्शंस में 12.5 इंटू 10⁻³ था, वो दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁻², और दूसरा आंसर आया था 3.125 इंटू 10⁻³ गॉट इट। सो सी ऑप्शन आंसर है। रेट एक कंपोनेंट का दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है वो सिखाने के लिए ये क्वेश्चन था, जो कि प्रीवियस ईयर 2010 ऑल इंडिया PMT का क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ। During the kinetic study of the reaction 2A plus B changing to C plus D, the following results were obtained from the above data. Which one is correct? आपको सारी ऑप्शंस में रेट लॉ पूछा जा रहा है। रेट लॉ निकालना है कि A के साथ रेट कैसे डिपेंड करता है और B के साथ भी रेट कैसे डिपेंड करता है। A को वेरी करें तो क्या रेट वेरी होता है, तो एक्सपेरिमेंट्स का इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। 4 एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन है, 1 2 3 4। 4 एक्सपेरिमेंट्स में से ऐसा कंपोनेंट देखो जहां पे A चेंज हो रहा है और B कांस्टेंट है, फिर देखेंगे जहां A कांस्टेंट है और B चेंज हो रहा है। तो अब हम सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखें। अगर R3/R2 करने से A का वैल्यू कांस्टेंट है तो B चेंज हो रहा है, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B आपको पता चल जाएगा। जनरल एक्सप्रेशन ये होता है R इज इक्वल टू K A⁻P एंड B⁻Q। ठीक है, तो हमने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू लिखी 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7.2, दोनों का वैल्यूज लिख दिया है, R3 और R2 का। तो ये आपकी राइट साइड में थर्ड एक्सपेरिमेंट में था 0.3/0.3⁻P और फोर्थ की वैल्यू 0.4/0.2⁻Q। गॉट इट। तो ये वैल्यूज को रखते हुए अब सॉल्व कर देंगे। तो आफ्टर कैंसलेशन ये कैंसिल कर दोगे तो लेफ्ट साइड पे 4 आ गया, ये कट करके 4 इज इक्वल टू 2⁻Q, ये भी कट रहे हैं 2 से। सो 2⁻2 इज 2⁻Q, हेंस द वैल्यू ऑफ Q इज 2। Q क्या था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B हमारा आंसर आ चुका है 2। अब हमें A के साथ भी ऑर्डर कैलकुलेट करना है। एक्सपेरिमेंट्स देखिए, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट ले ले फर्स्ट एंड फोर्थ तो B कांस्टेंट है और A वेरी करेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। लेट्स कैरी आउट R4/R1। R4 का वैल्यू है, फिर R1 का वैल्यू, जो भी वैल्यू है हम बाद में लिखेंगे। इट इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंट में R4 के अंडर आ रहा है 0.4 और ये आ रहा है 0.1,
उसके बाद R1 में 0.1 बोथ आर 0.1 एंड 0.1 और रेस टू पावर भूलना नहीं है, वो P एंड Q रहेंगे। R4 का वैल्यू 2.4 इंटू 10 रेस टू पावर -2 एंड R1 का वैल्यू है 6 इंटू 10 रेस टू पावर -3। दिस इज इक्वल टू 4 रेस टू पावर P। बाकी तो कैंसिल, ये तो कैंसिल हो रहा है, 0.1 को 0.1 से कैंसिल कर दिया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 4, डेसिमल्स को मूव करना पड़ेगा, 10 रेस टू पावर -3 को -2 बनाएंगे तो 0.6 बनेगा, तो 4 आ रहा है आपके पास लेफ्ट पे। सो इट मीन्स P इज इक्वल टू 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 आ गया और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B हमारा 2 आ गया था। गॉट इट? तो A एंड A के साथ 1 और B के साथ 2, इट मीन्स ऑप्शन A। करेक्ट आंसर इज इन A ऑप्शन। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा आपको दिया होता है, उनको कंपेयर करते हैं और अलग अलग कंपोनेंट के साथ ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं एंड ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो सबको ऐड करिए, 2 + 1 ऐड करोगे 3 आएगा। गॉट इट? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। Coming to the next. For an endothermic reaction, the energy of activation is EA and the enthalpy of reaction is H. Minimum value of activation energy will be equal to 0, less than delta H. ये बेटा delta H है, equal to delta H और more than delta H. आपको ये बताना है कि ये जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है क्या वो 0 होगी या वो लेस देन डेल्टा एच है, इक्वल टू है या मोर देन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन ने एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया है। एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाइए, बी केयरफुल। ग्राफ में प्रोडक्ट्स का एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर बनेगा क्योंकि एंडोथर्मिक है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन सच टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। ये जो गैप है ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट ना, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको डेल्टा एच कहते हैं। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड का मैंने सिंबल एक्टिवेशन एनर्जी का EA' कर दिया, ये आपका इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P। दिस इज द इंटरमीडिएट। गॉट इट? तो अब रिएक्शन के ग्राफ से हमें ये दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल दिख रही है? इट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। गॉट इट? तो दो चीजों के सम के बाद आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है। हेंस आई कैन से एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। कभी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से बड़ी होती है। एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर बनता है डी ऑप्शन, मोर देन डेल्टा एच। मोर देन डेल्टा एच विल कम। गॉट इट? सो अगर ग्राफ एक्सोथर्मिक का बनाना है तो फिर प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे करना है, एंडोथर्मिक का बनाना है प्रोडक्ट का एनर्जी ऊपर करना है। ग्राफ से ही दिख जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी इज बिगर देन द डेल्टा एच वैल्यू बिकॉज इट इज द सम ऑफ टू थिंग्स। ग्राफ से दिख रहा है ना कि डेल्टा एच और EA' का सम है वो। क्लियर? Coming to the next now, question number 12. 12th question is, what is activation energy for a reaction if the rate doubles when the temperature is raised from 20 degree to 35 degree? NEET 2013 का question है। Even +2 बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है, एंट्रेंस में तो आप देख ही रहे हो। सो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, टेम्परेचर्स आर गिवन। एक टेम्परेचर है 20 डिग्री, एक टेम्परेचर है 35 डिग्री। 35 का मतलब हो गया केल्विन, जब बनाएंगे तो 308 केल्विन, 273 ऐड कर दिया, ये हो गया 298 केल्विन। गॉट इट? दिस इज 20 डिग्रीज। 273 में आपने 20 ऐड करना है, ना कि 25, तो 293 बनेगा, 293। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यूज द एक्सप्रेशन log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
तो वैल्यूज लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, तो कैलकुलेशन होगा K2/K1 इज 2/1। पहला रेट कांस्टेंट अगर 1 था तो दूसरा डबल हो गया, तो मैंने एक को 1 एक को 2 ले लिया। इट इज इक्वल टू दिस अपॉन आर को किलो जूल पर मोल में रखना है 8.314 जूल में वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ ताकि सीधा आंसर किलो जूल में आए। 1/293 माइनस 1/308। These are the values and a long calculation is to be done. log 2 का वैल्यू है 0.3010। We can mention log 2 0.3010, ये खुद से पता होना चाहिए। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपके पास आंसर सीधा किलो जूल में आएगा 34.7 किलो जूल पर मोल। इट इज 34.7 किलो जूल पर मोल, हेंस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि आपको कभी के कैलकुलेट करना होता है, कभी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। ये आर्हीनियस इक्वेशन का ही फॉर्म है। आर्हीनियस इक्वेशन हमने दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए लिखी हुई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A reaction having equal energies of activation for the forward and backward reaction has, जिस रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगा, उस रिएक्शन में डेल्टा S 0 होगा या डेल्टा G या डेल्टा H और ऑल ऑफ देम आर 0। तो क्या करेंगे हम, ये एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे डेल्टा H क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब दोनों ही इक्वल है, क्वेश्चन ने दिया दे आर इक्वल फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है तो डेल्टा H विल बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर सेड टू बी इक्वल। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो डेल्टा H 0 हो गया। सी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन था, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर इज इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है वो निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये गलत हो गया। ऑर्डर फ्रैक्शन होता है, होल नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऑर्डर तो बहुत बार आप देखते हैं a⁻½ a⁻1/3 ऐसे आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। एनीवे लेट्स कम टू सेकंड। ऑर्डर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली एक्सपेरिमेंटली, दैट इज ट्रू। ऑर्डर कभी भी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन से नहीं आता है, ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। थर्ड, सी स्टेटमेंट में लिखा है ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिल्कुल ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता है। ऐसा भी होता है कि जैसे रिएक्शन है 2A + 3B इज गिविंग P मतलब सम प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो A⁻² और B⁻³ होगा। ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है A⁻² सम नंबर, B⁻² सम नंबर। तो P जो है इट कैन बी इक्वल टू 2, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2। Q कैन बी इक्वल टू 3, Q मे नॉट बी इक्वल टू 3। तो ये रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है। ये रेट लॉ में जो P + Q है वो रिएक्शन का ऑर्डर है। तो ऑर्डर कभी भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता नहीं चलता। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल नॉट टेल अबाउट द ऑर्डर। डी ऑप्शन देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पार्ट्स टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपने देख ही लिया कि ये जो रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है, उसमें जो सम ऑफ द पार्ट्स है P + Q वही ऑर्डर होता है। P + Q इज द ऑर्डर। सो विच इज इनकरेक्ट, हमारा आंसर है A ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑर्डर इज ऑलवेज ए होल नंबर, दैट इज नॉट ट्रू। Let's move to the next question now, question number 15. The 15th question is, in a reaction A + B giving products, rate is doubled when concentration of B is doubled. Rate double कर दिया जब B को double करते हैं, and the rate increases by a factor of 8 when the concentration of both are doubled. What is the rate law? देखो, हम पहली स्टेटमेंट के ऊपर ये लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1, क्योंकि रेट डबल हो रहा है जब, नहीं A नहीं B डबल लिखा है,
क्वेश्चन में क्या लिखा है, b इज डबल्ड। तो जब आप b को डबल करते हो रेट डबल होता है, आप b को ट्रिपल करोगे रेट ट्रिपल होगा। इट मींस b के साथ तो ऑर्डर 1 हो गया। अब बात है नेक्स्ट कि रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ जाता है जब दोनों को डबल कर दिया जाए। अब देखिए, अब हम लिखेंगे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू पावर 2 b रेस टू पावर 1। अब मैंने दोनों को डबल कर देना है, a को मैंने बना दिया 2a और b को बना दिया 2b, दोनों को ही डबल कर दिया। तो क्या ये 8 आ रहा है, इट इज 4a स्क्वायर इंटू 2b। कैन इट बी रिटन एज 8a स्क्वायर b। नया रेट जो है विच इज R2, प्रीवियस रेट R1 था, इन दोनों को कंपेयर करिए। कैन यू सी द न्यू रेट इज 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेट। R2 था 8a स्क्वायर b एंड R1 था a स्क्वायर b। 8:1 रेशो आ गई, 8:1। सो आपके पास है आंसर कि हम a के साथ ऑर्डर सेकंड बोलेंगे, b के साथ फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन a स्क्वायर इंटू b। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बट सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो थोड़ी टीडियस थी कि जब 8 गुना होता है तो a के ऊपर क्या लिखना है, b के ऊपर क्या लिखना है, वो ऐसे नंबर्स आप लिख के देखो जिससे कि ऑर्डर मैच हो जाए, रेट 8 टाइम्स हो जाए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट इज डबल्ड। जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि 20 से 30 कर दिया, तो रेट डबल हो जाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए 10 डिग्री से आपने शुरू किया, अब आप 20 डिग्री पे गए, फिर आप गए 30 पे, फिर गए 40, उसके बाद 50, 40 के बाद आता है 50, देन इट इज 60, फिर 70, देन 80 एंड देन 90 और फिर 100 तक जाना है। कितने स्टेप्स हो रहे हैं वो काउंट करते हैं। ये एक 10 डिग्री का एक जंप हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। 9 जंप्स आपने 10 डिग्री के करे, तब आप 10 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच गए। ये था 10 डिग्री, अब हो रहा है 100 डिग्री। गॉट इट। तो 2 रेस टू पावर 9 टाइम्स रेट बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन becomes equal to 2 रेस टू पावर 9, क्योंकि 9 बार आपने 10-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। जब एक बार ही 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो ये डबल हो जाता है। तो 2 रेस टू पावर 9 मतलब 512। 512 का मतलब है योर आंसर इज ऑप्शन सी। 512 गुना रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। गॉट इट। सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 नाउ। When the initial concentration of reactant is doubled, half-life is not affected. तो ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं। तो टी हाफ डज नॉट चेंज, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। टी हाफ इज नॉट अफेक्टेड लिखा है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप डबल करो, ट्रिपल करो या हाफ करो, टी हाफ चेंज नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा ऑर्डर है। देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू पावर 1 माइनस n। ये याद रखना है, ये जनरल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो हम रेशो ले लेते हैं, टी हाफ 1 और फिर है टी हाफ 2, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन पहले a थी, फिर डबल कर दी, 2a बना दी, 1 अपॉन मतलब a अपॉन 2a रेस टू पावर 1 माइनस n। अब ये जो है टी हाफ डज नॉट चेंज बोला है, तो सेकंड वाले को भी फिर मैंने 1 कर देना है। टी हाफ 1 जो है उतना ही रहता है, टी हाफ 2 भी, दोनों हाफ लाइफ टाइम वही के वही हैं। कैन आई राइट इट इज a अपॉन 2a रेस टू पावर 1 माइनस n। तो लेफ्ट साइड आपकी 1 हो रही है, इसको 1 लिखना था, टी हाफ 2 को भी 1 लिखना था ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट साइड पे आ गया 1। अब हमारी इक्वेशन बन गई 2a रेस टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a रेस टू पावर
1 माइनस n। तो ये जो रिलेशन है इट इज ट्रू ओनली फॉर n इज इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये बनेगा 2a रेस टू पावर 0, राइट साइड पे बनेगा a रेस टू पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1। तो फर्स्ट ऑर्डर का बहुत स्पेशल फीचर है ये। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बदलने से टी हाफ चेंज नहीं होता है। सी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर। आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो विद 1000 ग्राम ऑफ द सैंपल। 1000 से 500 ग्राम अगर वो 10 मिनट लेता है, आधा होने में 10 मिनट लगे तो टी हाफ इज 10 मिनट्स। फिर फर्दर 500 से 250 बनने में भी इसको 10 मिनट्स ही लगेंगे। ये स्पेशल फीचर है फर्स्ट ऑर्डर का। कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आए या डिक्रीज आए टी हाफ चेंज नहीं होता। सो कमिंग टू द ऑप्शंस, इट इज नॉट जीरो ऑर्डर, इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, सॉरी नॉट सेकंड ऑर्डर बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कभी भी चेंज नहीं होता है। टी हाफ का एक्सप्रेशन आप फर्स्ट ऑर्डर का जानते हैं। टी हाफ इज गिवन बाय 0.693 अपॉन के। ए तो इसमें आता ही नहीं है, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन ए आ ही नहीं रहा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द रिएक्शन N2 plus H2 is giving ammonia, you are having d upon dt of NH3 is d upon dt of NH3 आपको गिवन है 2 into 10 raised to power minus 4. What is the value of minus d upon dt of H2? तो क्या करेंगे, अपने रिएक्शन के लिए हम पहले रेट लिखेंगे फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। इट इज माइनस डी अपॉन dt of N2 equal to minus 1/3 d upon dt of H2. This is equal to 1/2 d upon dt of NH3. अब कौन कौन सा कंपोनेंट हमें गिवन है, हमें अमोनिया का रेट गिवन है और H2 का निकालना है। मतलब क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अमोनिया एंड H2। अमोनिया के लिए क्या वैल्यू दी है, 2 into 10 raised to power minus 4। अब हम अपनी इक्वेशन को बस इस पार्ट तक रिड्यूस कर देंगे। ये हमें दिया है 2 into 10 raised to power minus 4 और कैलकुलेट क्या करना है, d upon dt of H2। तो कैन इट बी रिटन एज d upon dt of H2 is equal to 3/2 of 2 into this, 2 and 2 will be cancelled. Your answer will be 3 into 10 raised to power minus 4. This is the rate of disappearance of H2 and rate का यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ही रहता है। So ऑप्शंस पे आइए, बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर 3 into 10 raised to power minus 4. Got it? Let's move to the next now, question number 19. For a reaction N2O5 changing to NO2 plus O2, rate and rate constant दोनों दे दिए गए हैं। Concentration of N2O5 at that time will be, you are given rate and then rate constant, दोनों के वैल्यूज आपके पास हैं। आपको concentration of N2O5 कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम पहले तो देखें ऑर्डर कौन सा है। K के यूनिट से ऑर्डर पता चलता है, ये सबसे पहली बात है। K हमें गिवन है 3.4 into 10 raised to power minus 5 पर सेकेंड, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर के। और रेट कितना दिया है, 1.02। लेट मी राइट इट क्लियरली, इट इज 1.02 into 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की लगाएंगे। R इज इक्वल टू के N2O5 रेस टू पावर 1। N2O5 आपके रिएक्शन का रिएक्टेंट था। अगर ये जीरो ऑर्डर आ जाता तो मैंने N2O5 के ऊपर 0 कर देना था, सेकंड आ जाता तो ऊपर 2 कर देना था। यूनिट से हमने देख लिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। एज अ रिजल्ट अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगी। रेट की जगह हम लिख देंगे 1.02 into 10 raised to power minus 4 और K की जगह 3.4 into 10 raised to power minus 5. This is N2O5. Hence the concentration of N2O5 after simplification, it will come out to be 3. डिवाइड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 3, तो आंसर बनता है बी पार्ट।
गॉट इट। डेसिमल मूव करना पड़ेगा, एक 10⁻⁻4 है, एक 10⁻⁵ है। डेसिमल मूव करने के बाद ये एग्जैक्ट 3 वैल्यू आ जाएगी। सो आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20। For the reaction 2A plus B is giving 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate? रिएक्शन रेट किसके थ्रू एक्सप्रेस नहीं हो रहा है? देखो, हम पहले ऑप्शन से पहले हम खुद लिखेंगे रेट, रिएक्शन रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बनेगा 1/2 D/dt ऑफ A, फिर ये बनेगा इक्वल टू -D/dt ऑफ B इक्वल टू 1/3 dC/dt इक्वल टू D/dt ऑफ D। सबके साथ आपने रिएक्शन का रेट लिख लिया। अब ऑप्शंस देखो, रिएक्शन का रेट आप किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, -dA/2dt। फिर बी वाला भी करेक्ट है, इसमें ये आ रहा है 1/3 आ रहा है। सी के अंदर देखिए सी इज करेक्ट, सी के बाद डी भी करेक्ट है, बट जो बी ऑप्शन है उसमें सी प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के आगे माइनस नहीं लगेगा। यहां प्रोडक्ट के आगे माइनस लगा रखा है ना, दैट इज रॉन्ग। प्रोडक्ट के आगे प्लस लगता है क्योंकि प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस होता है और रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है और माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। Coming to the next now, question 21. Velocity of a reaction is doubled for every 10 degree rise in temperature. If the temperature is raised to 50 degree, then the reaction velocity increases by what amount? 50 डिग्री कर दिया, मतलब पहले वो 0 डिग्री था समझ लो, आप 50 कर दिया, रेस टू 50 डिग्री। सो आपने 2⁵ कर देना है। 2⁵ 32 होता है, 32 टाइम्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। 0 से आप 10 पे गए, 10 से 20 पे, 20 से 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे। सो जंप कितने हुए? 10-10 डिग्री के 1, 2, 3, 4 एंड 5 जंप्स। एज अ रिजल्ट आपके पास 32 टाइम्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। रिएक्शन वेलोसिटी का मतलब है रिएक्शन रेट, कितने गुना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा ये बताना था हमें। कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20। For the 22, A plus B is giving C plus D, delta H is given and activation energy for the forward reaction is given, activation energy for the backward is to be calculated। हम क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन लगाएंगे जो कि डेल्टा H is equal to activation of forward minus activation of backward। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बैकवर्ड का। डेल्टा एच का वैल्यू है 20 एंड यू हैव दिस एज फॉरवर्ड का वैल्यू 85 माइनस EA ऑफ बैकवर्ड, और रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि -20 दिया। गॉट इट? तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, -20 दिया है। तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आ गई 85 + 20 = 105। बी केयरफुल, ग्राफ को ठीक से देखो। अगर नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा एच की तो एक्सोथर्मिक का ही ग्राफ बनाना है, एंडोथर्मिक का नहीं बना देना। सो एक्सोथर्मिक के अंदर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होता है। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है डेल्टा एच, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू फॉरवर्ड के लिए 85 दिया था, बैकवर्ड का आपको कैलकुलेट करना था। बैकवर्ड के लिए हम ये यूनिट 20 है ना, तो 85 + 20 लेंगे, अपने आप से वो 105 बन जाएगा। सो 105 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट, बी ऑप्शन 105 बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये क्वेश्चन एंडोथर्मिक पे होता तो ग्राफ फिर प्रोडक्ट का एनर्जी फिर हमने ऊपर बनाना था, ये डिफरेंस होता है। बी केयरफुल फॉर द ग्राफ, अदरवाइज आंसर के वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन जो याद रखने का है वो ये है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। गॉट इट? सो वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द फैक्टर्स ऑन विच रेट डिपेंड्स, यूनिट्स ऑफ के,
expression for first order, expression for zero order, how to find out K, how half life depends upon the initial concentration. Initial concentration change करो तो half life किस order में change होती है, किस में नहीं होती. ये concept की clarity के लिए और भी question आएंगे हमारे next video के अंदर. एंड एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने देखा, 3-4 क्वेश्चन हमने एक्टिवेशन एनर्जी के किए जो कि अर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड है. टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंज होता है. एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत रोल है. तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर राइज करने से K में कितना राइज हुआ. इवन आपने ये भी देखा, अगर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो फिर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट भी इक्वल हो जाते हैं. तो हमने अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्डर के साथ रिलेटेड हैं, जैसे कि सेकंड ऑर्डर के अंदर K कैलकुलेट कैसे होता है, थर्ड ऑर्डर में K कैसे कैलकुलेट होता है, इवन हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट होती है, एंड मोर क्वेश्चंस ऑन अर्हीनियस इक्वेशन रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी विल बी देयर. So before we meet in the next video, you please revise the concept and make sure you subscribe to the channel. It will help you to revise the topic thoroughly. Thank you and bye bye.